بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا کی ایک اور قسم بھی ہے نحویوں کے نزدیک، جس کو کہتے ہیں مبتدا کی قسم ثانی، اور یہ ایسا مبتدا ہوتا ہے جو مسند الیہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہوتا ہے اور حرف نفی کے بعد یا حرف استفہام کے بعد آتا ہے۔ تو جب اس میں فاعل کا صیغہ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد آ جائے تو وہ اس میں فاعل کا صیغہ بھی ترکیب میں ہم مبتدا بناتے ہیں، اس کو بھی ترکیب میں ہم کیا بناتے ہیں؟ مبتدا۔ لیکن یہ مبتدا مسند الیہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسند الیہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں فاعل کی جو مشابہت ہے وہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے، تو فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ جس کی مشابہت ہے وہ بھی مسند ہوگا، مسند الیہ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اب ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں بشرط ان ترفع تلك الصفة اسما ظاهرا نحو ما قائم الزيدان وأقائم الزيدان بخلاف ما قائمان الزيدان بشرط۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس مبتدا کے مبتدا بننے کی شرط بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں فاعل کا صیغہ جب حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد آ جائے تو وہ مبتدا بنتا تو ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ اس میں فاعل کا صیغہ اپنے بعد آنے والے اسم کو پیش دے رہا ہو، رفع دے رہا ہو، اپنے بعد میں آنے والے اسم کو رفع دے رہا ہو۔ اگر وہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو رفع نہیں دے رہا تو پھر اس صورت میں وہ اس میں فاعل کا صیغہ مبتدا نہیں بنے گا۔ اب اس کی مثالوں کو سمجھیں، جیسے ما قائم الزیدانی، اور دوسری مثال ہے اقائم الزیدانی، تیسری مثال ہے ما قائمان الزیدانی۔ اب ان دو مثالوں میں ما قائم الزیدان اور اقائم الزیدان، ان دونوں مثالوں میں قائم اس میں فاعل کا صیغہ ہے، پہلی مثال میں ما حرف نفی کے بعد ہے اور دوسری مثال میں حمزہ استفہام کے بعد ہے، اور ان دونوں مثالوں کے اندر یہ زیدان کو رفع دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں یہاں قائم مفرد ہے، قائم کیا ہے؟ مفرد، اور الزیدان یہ تثنیہ ہے۔ جس طرح فعل کے بعد فاعل آ جائے اس میں ظاہر تو فعل کو ہمیشہ مفرد ہی لاتے ہیں، تثنیہ جمع نہیں لاتے، چاہے فاعل تثنیہ ہو چاہے فاعل جمع ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر فعل اپنے بعد والے اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہے، تو یہاں پر بھی اس میں فاعل کا صیغہ دیکھیں مفرد ہے فعل کی طرح، اگرچہ اس کے بعد جو اس کا فاعل ہے الزیدان جو کہ خبر بھی ہے، اب یہ الزیدان کو رفع دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الزیدان تثنیہ ہے لیکن قائم پھر بھی مفرد ہے۔ لیکن اس مثال میں دیکھیں ما قائمان الزیدانی، اب اس مثال کے اندر قائمان تثنیہ ہے، الزیدان بھی تثنیہ ہے۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ قائمان کے اندر ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، اگر الزیدان فاعل ہوتا تو قائمون مفرد ہوتا فعل کی طرح، کیونکہ جس طرح فعل کے بعد والا اسم اگر فعل کا فاعل ہو تو فعل کو ہمیشہ مفرد ہی لایا جاتا ہے، لیکن اگر ضمیر فاعل ہو تو پھر فعل کو ضمیر کے مطابق لاتے ہیں۔ تو قائمان کے اندر ضمیر فاعل ہے، اس لیے ضمیر تثنیہ کی ہے، تو تثنیہ کی ضمیر کے لیے قائمان بھی تثنیہ لائیں۔ اگر یہ قائمان الزیدان کو رفع دیتا تو پھر اس کا مرفوع ہونا قائمان کے لیے ضروری تھا کہ یہ مفرد ہوتا، جبکہ یہاں قائمان مفرد نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں سمجھ میں آئی تو تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ آپ نے جب فاعل کے قواعد پڑھے تھے تو فاعل کے قواعد میں آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آتا ہے، یہ ایک ضابطہ آپ نے پڑھا تھا، یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد ہی آتا ہے۔ جیسے اس کی مثال تھی ضرب زیدن، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون۔ اب دیکھیں ضرب الزیدن، اب یہ زیدن مفرد ہے، ضرب بھی مفرد ہے،
ज़रबत ज़ैदान, ज़ैदान तस्नीया है लेकिन ज़रबा फिर भी मुफरद है। ज़रबत ज़ैदून, ज़ैदून जमा है लेकिन ज़रबा फिर भी मुफरद है। क्यों मुफरद है? इसलिए कि यहाँ पर जो फाइल है वो इसमें ज़ाहिर है, यानी ऐसा इसम है जो फेल के बाद आ रहा है, ज़मीर फाइल नहीं है। लेकिन आपने वहाँ दूसरा ज़ाब्ता ये पढ़ा था कि जब ज़मीर फाइल हो तो फिर फेल को फाइल के मुताबिक लाते हैं। क्या मतलब कि अगर ज़मीर मुफरद की है तो फेल भी मुफरद, ज़मीर तस्निया की है तो फेल भी तस्निया, ज़मीर जमा की है तो फेल भी जमा। यही कायदा है इसमें फाइल का, कि इसमें फाइल के बाद में आने वाला इसम अगर फाइल बन रहा हो उस इसमें फाइल के लिए, तो इसमें फाइल हमेशा मुफरद ही आएगा, चाहे उसके बाद में आने वाला इसम तस्निया हो या जमा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इन दो मिसालों के अंदर काइमुन अज़्ज़ैदान, काइमुन अज़्ज़ैदान, दोनों मिसालों में आप देख रहे हैं कि ज़ैदान तस्निया लेकिन काइमुन फिर भी मुफरद आया हुआ है। लेकिन अगर इसमें फाइल का सीगा तस्निया हो या जमा हो तो उसका मतलब ये होगा कि इसमें फाइल के बाद जो इसम आ रहा है उसको इसमें फाइल उस पर अमल नहीं कर रहा, वो उसका फाइल नहीं है, उसको वो रफा नहीं दे रहा, बल्कि उसके अंदर जमीर है तस्निया की, अलिफ जमीर है जो कि रफा दे रही है जिसको जो मरफू है और वो फाइल बन रही है काइमान के लिए। अब उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ रुक भी जाता हूँ ताकि आपसे पूछ लूँ फिर हम आगे चले। बिशर्त, इस शर्त के साथ, अंतर फातिल का सिफत हो कि रफा दे वो इसमें फाइल का सिगा इसमन ज़ाहिरन, इसमें ज़ाहिर को, नहवु जैसे मा काइमुन अज़्ज़ैदान व अकाइमुन अज़्ज़ैदान और अकाइमुन अज़्ज़ैदान, बिखिलाफ मा काइमानी ज़ैदानी, बिखिलाफ इस मिसाल के मा काइमानी अज़्ज़ैदानी। फस्लुन खबरु इन्न व अखवातिहा वहिया। यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह मरफूआत की चौथी किस्म बयान फरमा रहे हैं। पहली किस्म फाइल थी, दूसरी और तीसरी मुबतदा और खबर थी, अब ये चौथी किस्म है इन्ना और अखवात इन्ना की खबर वहिया। अब यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह अखवात इन्ना को बयान फरमा रहे हैं। एक तो है इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फेल, अखवात इन्ना क्या है, इन्ना की बहनें कौन सी हैं, इन्ना की सिस्टर कौन सी हैं कि जो इन्ना वाला अमल ही करती हैं। तो फरमाते हैं कि वो ये हैं अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लईता और लाअल्ला। ये 6 हरूफ हो गए, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लईता और लाअल्ला। फ़हाज़िहिल हुरूफ़ तदखुलु अलल मुब्तदा वल खबरी। यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि ये हरूफ जो हैं, ये जो 6 हरूफ बताए हैं, इन्ना अन्ना का अन्ना लईता लाकिन्ना लाअल्ला, ये 6 हरूफ हमेशा मुबतदा और खबर पर दाखिल होंगे। यानी अगर इन 6 हरूफ को हम हटा दें तो उन इन 6 हरूफ को हटाने के बाद जो बाद में हमें इसम नजर आएंगे उनमें से एक मुबतदा होगा और दूसरा खबर होगा। फतनसिबुल मुबतदा व युसम्मा इस्म इन्ना व तरफ़उल खबरा व युसम्मा खबरा इन्ना। यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह इनका अमल बयान फरमा रहे हैं कि ये हरूफ जो है ये मुबतदा को नस्ब देते हैं। वैसे तो मुबतदा मरफू होता है ना, उस पर पेश आता है, लेकिन जब ये हरूफ मुबतदा पर दाखिल होंगे तो उसको मंसूब कर देंगे, उसका रफा पेश पेश जो है उसका वो जबर में तब्दील हो जाएगा, और खबर को ये रफा ही देंगे। खबर पहले भी मरफू होती है लेकिन इनके आने के बाद फिर उसका जो रफा होगा वो इनकी वजह से होगा। अच्छा जी, फिर नाम भी बयान फरमा दिया कि जब ये हरूफ मुबतदा और खबर पर दाखिल होते तो मुबतदा को कहते हैं कि ये इन्ना का इसम है और खबर को कहते हैं कि ये इन्ना की खबर है। जैसे इसकी मिसाल यहीं पर समझ लें, आप पढ़ते हैं ना इन ज़ैदन क़ाइमुन, अब इन हर्फ मुशब्बह बिल फेल है, इसको आप हटाएं तो ज़ैदन पहले क्या था, ज़ैदुन क़ाइमुन, लेकिन इन्ना को आपने लगाया तो ज़ैदुन जो कि पेश के साथ था वो रफा में तब्दील हो गया ज़ैदन। अब ये ज़ैदन मुब्तदा नहीं है बल्कि ये ज़ैदन इन्ना का इसम है, और ये जो क़ाइमुन है ये मुब्तदा की खबर नहीं है क्योंकि मुब्तदा खुद तब्दील हो चुका है, ये क़ाइमुन इन्ना की खबर है। फतनसिबुल मुब्तदा, बस ये हरूफ नस्ब देते हैं मुब्तदा को, वयुसम्मा और नाम रखा जाता है मुब्तदा का, इस्म इन्ना, इन्ना का इसम, व तरफ़उल खबरा और ये हरूफ रफा देते हैं खबर को, वयुसम्मा खबरा इन्ना और उस खबर का नाम रखा जाता है इन्ना की खबर। फ़खबरु इन्ना हुवल मुस्नदु बअद दुखूलिहा नहवु इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन।
यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मुबतदा की जो खबर होती है वो पहले मुस्नद होती है मुबतदा की वजह से, लेकिन जब ये हरूफ दाखिल हो जाते हैं तो अब उसका मुस्नद होना इन हरूफ की वजह से होता है। जैसे मिसाल देखें, इन ज़ैदन कायम, आप इन्ना को हटा दे तो क्या पढ़ेंगे, ज़ैदुन कायम। अब यहाँ कायम ये खबर है और ये मुस्नद है, खबर मुस्नद होती है, लेकिन ये मुस्नद है ज़ैदन की वजह से, ज़ैदन मुस्नद इलैह है तो कायमुन मुस्नद है इसकी वजह से। लेकिन जब इन्ना दाखिल हो गया तो अब ये कायमुन जो मुस्नद है वो इन्ना की वजह से, यानी इन्ना इसको अब रफा दे रहा है कायमुन को। पहले तो इसका रफा खबर की वजह से था ना, अब इसका रफा इन्ना की वजह से है। यानी इन्ना इस पर अमल कर रहा है। फ़खबर इन्ना, पस इन्ना की खबर वो मुस्नद होती है बाद दुखूलिहा, इन हरूफ के दाखिल होने के बाद। अब यहाँ सवाल एक पैदा होता है, मसलन आपसे कोई सवाल करता है कि मुबतदा की खबर भी तो मुस्नद होती है और इन्ना की खबर भी मुस्नद होती है, दोनों में फ़र्क क्या है? जवाब, दोनों में फ़र्क ये है कि मुबतदा की खबर जो मरफू होती है उसका रफ़ा उस मुबतदा की वजह से होता है, लेकिन इन्ना की खबर जो मरफू होती है उसका रफ़ा इन्ना की वजह से होता है, यानी आमिल बदल जाता है। व हुक्मुहु फी कौनिही मुफरदन औ जुमलतन मारिफतन औ नकिरतन का हुक्म खबरिल मुबतदाई। यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह इन्ना और अखवात इन्ना की जो खबर है उसका हुक्म बयान फरमा रहे हैं। फरमाते हैं मुफरद होने में, जुमला होने में, मारफा होने में, नकिरा होने में, इसका हुक्म वही है जो मुब्तदा की खबर का है। क्या मतलब कि मुब्तदा अगर मुफरद हो तो खबर मुफरद आती है, तो ऐसे ही इन्ना का इसम अगर मुफरद हो तो उसकी खबर भी मुफरद आएगी। इसी तरह आपने पढ़ा था कि मुब्तदा की खबर अगर तस्निया हो तो मुब्तदा तस्निया हो तो खबर भी तस्निया आती है, तो ऐसे ही इन्ना का इसम अगर तस्निया हो तो उसकी खबर भी क्या आएगी, तस्निया आएगी। यही जमा का हुक्म है। और इसी तरह आपने पढ़ा था कि खबर जुमला भी हो सकती है, कभी जुमला इस्मिया, कभी जुमला फेलिया, कभी जरफिया, कभी शर्तिया, ये आपने पीछे पढ़ा है मुब्तदा खबर की बहस में। तो ऐसे ही इन्ना का जो इसम है उसकी खबर भी कभी जुमला होगी, कभी जुमला इस्मिया, कभी खबरिया, कभी जरफिया, कभी शर्तिया। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि मुब्तदा की खबर आमतौर पर नकिरा होती है, तो ऐसे ही इन्ना का जो इसम है उसकी खबर भी क्या होगी, नकिरा होगी। वह हुक्मुहु, और इन्ना की जो खबर है उसका हुक्म, फी कौनिही मुफरदन अव जुमलतन, मुफरद और जुमला होने में, मारिफतन अव नकिरतन, मारिफा और नकिरा होने में, का हुक्म खबर मुब्तदा, मुब्तदा की खबर की तरह है। फला यजूज़ु तक़दीमु अख़बारिहा अला अस्माइहा इल्ला इज़ा कान ज़र्फ़न नहवु इन्न फ़िद्दारि ज़ैदन लिमजालि तवस्सुइ फ़ी ज़ुरूफ़ि। यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह मुब्तदा की खबर और इन्ना की खबर के दरमियान फ़र्क बयान फरमाते हैं। फरमाते हैं कि मुब्तदा की जो खबर है वो मुब्तदा पर मुकद्दम हो सकती है। ये आपने पढ़ा था मुब्तदा खबर की बहस में कि मुब्तदा की खबर मुब्तदा पर मुकद्दम हो सकती है। जैसे आप कहते हैं फिद्दारी रजुलुन, फिद्दारी जैदुन, जैदुन फिद्दार, जैद घर में है, ये भी ठीक है। फिद्दारी जैदुन, ये भी ठीक है। जैदुन फिद्दार भी ठीक, फिद्दारी जैदुन भी ठीक है। लेकिन इसी तरह की और मिसाल भी देख लें। जैसे आप कहते हैं अल्लाहु इलाहुना, अल्लाह मुब्तदा है, इलाहुना इसकी खबर है। अब इलाहुना को आप पहले ले आए, इलाहुना अल्लाह, दोनों तरह ठीक है। मुहम्मदुन नबीयुना, नबीयुना मुहम्मदुन, यानी मुब्तदा खबर में आप खबर को पहले, मुब्तदा को बाद में, मुब्तदा को पहले, खबर को बाद में आप ला सकते हैं। लेकिन इन्ना की जो खबर होती है वो अपने इसम पर मुकद्दम नहीं होती। हाँ, एक सूरत में मुकद्दम हो सकती है। मुब्तदा की खबर तो हर सूरत में मुकद्दम हो सकती है ना, लेकिन इन्ना की खबर जो है अपने इसम पर सिर्फ एक सूरत में मुकद्दम हो सकती है कि जब खबर जार मजरूर हो। जब खबर क्या हो, जार मजरूर, यानी ज़र्फ हो, जार मजरूर हो। तो खबर जब जार मजरूर होगी तो इन्ना की खबर भी अपने इसम पर मुकद्दम हो जाएगी, अपने इसम से पहले आ जाएगी। क्यों? इसलिए कि जार मजरूर के अंदर वुसअत होती है। वुसअत होने का मतलब यह है कि जार मजरूर कहीं पर भी कलाम के अंदर जिक्र किए जा सकते हैं। वला यजूज़ु, और जायज़ नहीं होता, तकदीम अखबारी, हाँ, इन्ना और अखवात इन्ना की खबरों को पहले लाना अला अस्मा या इनके इसमों से, इल्ला इदा कान ज़र्फ़न, मगर ये कि जब खबर ज़र्फ़ हो, ज़र्फ़ से मुराद जार मजरूर हो। नहवु जैसे इन्ना फिद्दारी ज़ैदन, अब यहाँ पर देखे फिद्दारी जार मजरूर है,
اب یہ انا کی خبر ہے لیکن پہلے آئی ہوئی ہے، اور زیدن انا کا اسم ہے، یہ بعد میں آیا ہوا۔ لمجال التوسع فی الظروف، اس لیے کہ ظروف کے اندر توسع یعنی وسعت ہوتی ہے، ظروف کے اندر کیا ہوتی ہے؟ وسعت ہوتی ہے، یعنی ظروف کو کہیں بھی کلام کے اندر ذکر کیا جا سکتا ہے۔ چلیں جی اس کو یہاں تک کرتے ہیں۔